मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलॉजिकल। दिस इज 36th सेशन ऑफ आवर कैट DILR100 सीरीज। स्टार्ट करते हैं एक और ब्यूटीफुल सेशन। एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में सेशन को भी लाइक कर देना और टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। सो दिस इज द सेट फॉर टुडे, फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द सेट एंड देन वॉच द सॉल्यूशन। So let us read the caselet first. 200 students in the first year of a BSchool opted for at least one of the 4 available elective courses. And the courses are marketing, finance, operations, and human resources. For each elective opted by a student, a separate entry in the academic office register was made, totaling 480 entries for all the students. Total students कितने हैं? 200 है. And the question is suggesting that all those students have opted for at least one of the 4 elective courses. All of them have taken at least one course for sure. Okay, so there will be some students who would have opted for only one course, some students who would have opted for only 2 courses, some who would have opted for only 3, and some who would have opted for all 4. अगर रियल सेशंस की है तो हम सेट में इनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि लेट अस से दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, या फिर तुम ABCD कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। ओनली 2 रिप्रेजेंट करते हैं दोज हु बिलोंग टू 2 सेट्स, only 3 those who belong to 3 sets, and only 4 all 4 obviously because 4 ही electives हैं, that will be by this. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 200 है एंड एवरीवन हैज ऑप्टेड फॉर एटलीस्ट वन कोर्स, यानी कि हमारा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा व्हिच इज ऑप्टेड फॉर 0 कोर्सेज ऑब्वियसली. सो सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज this should be equal to 200. Then question is saying for each elective opted by a student, a separate entry is made in the register and total entries are 480. So since for every elective there is a separate entry, so जिसने 2 courses opt किए होंगे, for that particular student there will be 2 entries. The student who would have opted for 3 courses, for that particular student there will be 3 entries, and so on. So we can say the total entries are 480. So those who opted for only one course will be counted only once. Those who opted for 2 courses will be counted twice. Those who opted for 3 courses will be counted thrice or will be having 3 entries in their name. And those who opted for all 4 courses will be having 4 entries in their name, and total sum will be equal to 480. There are 2 equations. Okay. Then question कह रहा है हमारा, the number of students who chose only 2 electives was twice the number of students who chose only 1 elective. So those who chose only 2 electives are double that of number of students who chose only 1. So if we assume that those students who chose only 1 elective, that is equal to x. So this number here will be equal to 2x. And then 40 students chose 3 electives only. So this number is already given to us that this is equal to 40. Those who chose only 3 electives are equal to 40. और मान लेते हैं कि जो all 4 जिन्होंने सेलेक्ट किया, let us say those are equal to y. Okay, let us say those are equal to y. ठीक है, फिर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 40 स्टूडेंट्स चोज, ठीक है, तो हो गया ईच पेयर ऑफ 3 इलेक्टिव्स वाज ऑप्टेड बाय इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो या तो हम इक्वेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में 1 2 3 4 की जगह वैल्यूज पुट कर देते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं. एक्स और वाई दो अननोन है हमारे पास, दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व हो जाएगा, एक्स और वाई का हमें वैल्यू इजीली मिल जाएगा. ठीक है, इजीली हमें वैल्यू मिल जाएगा, तो डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अदरवाइज एक और बात समझ लेते हैं यहाँ पे कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है ईच पेयर ऑफ 3 इलेक्टिव्स वाज ऑप्टेड बाय इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, सो टोटल 3 इलेक्टिव्स ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 40 हैं. No, एक सेकंड. Each pair of 3 electives was opted by equal number of. हाँ ठीक है, ये तो 40 है, इसको बाद में कर लेंगे, आगे की बात देखते हैं कि number of students who chose only one elective was also equal for all the electives. So for all the 4 electives, the number of students who chose only one elective is equal. Total electives हमारे पास 4 हैं. So for students who are choosing marketing only, if that is equal to 1 unit, so that will also be those who chose only finance will also be equal to 1 unit, and so on. तो marketing वाले अगर हमारे let us say that number, those who chose marketing, that will be equal to, if let us say that is equal to z, so that for only finance will also be only finance. Only marketing की बात करें, only one elective, so only marketing is z, only finance will also be z, only operations will also be z, only human resources will also be z. Total आ जाएगा 4z. तो this number x, since this will be equal to sum of all these values, यानी कि this will be equal to 4z, तो this implies that x must be a multiple of 4 also. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो वैसे भी x और y दो नोन है, दो इक्वेशन है, हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा. बट अदरवाइज कोई और क्वेश्चन होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x के बजाय 4x एज्यूम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो नंबर हमारा x आएगा, x विल बी डेफिनेटली अ मल्टीपल ऑफ 4.
क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, अब यहाँ पे जरूरत नहीं है 4z मानने की, क्योंकि वैसे भी 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है, डायरेक्टली सॉल्व होकर हमें वैल्यू मिल जाएगी। बट अगर कोई और क्वेश्चन होता तो वहाँ पे हमें कई बार इक्वेशन बनाना पड़ता, मल्टीपल केसेस बनते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम x के बजाय 4x वैल्यू अज्यूम कर देते, बिकॉज दैट वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट इन दिस सिनेरियो। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट डायरेक्टली हम x और y पुट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा x + 2x which is 3x plus 4t plus y, this is equal to 100. So 3x plus y comes out to be equal to 160. This is our first equation. या थर्ड मान लेते हैं इसको, फर्स्ट तो चलो पहले ही किया था। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन पुट करते हैं। सो x plus 4x plus 3 into 40 is 120 plus 4y, and this is equal to 480. So 5x plus 4y, this is 360. And first equation हमें बताया 3x plus y that is equal to 160. So first equation मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, well third equation basically थर्ड को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, थर्ड into 4, so that will give us 12x plus 4y is equal to 640. Now subtract कर देंगे नई इक्वेशन से अपना फोर्थ इक्वेशन। तो 12x minus 5x will be 7x and 640 minus 360 will be 280. 7x is equal to 280, तो x will be equal to 280 by 7 which is equal to 40. So value of x comes out to be equal to 40, and then value of y क्या आ जाएगा? Since 3x plus y is 160, 3x is equal to 120, तो y will also be equal to 40. So those who opted for only one course, the total is equal to 40, and those who opted for all 4 courses, that is also equal to 40. And those who opted for only 2 courses, that total is equal to 80. Hence marketing only वाले स्टूडेंट कितने होंगे? That will be 1/4 of 40 यानी कि 10, finance only 10, operations only 10, और HR only that is also equal to 10. अब फिर आप इसके बाद में हमें इक्वेशन गिवन है फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन दोज स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर एग्जैक्टली 2 electives. तो वो बात एक फ्रेश पेज पे करते हैं। अब अपना 4 सेट वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज देयर आर 4 सेट्स 4 पॉसिबिलिटीज। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करके और फिर फिगर्स को उस पर लिखना स्टार्ट करते हैं। आई होप दैट यू नो द बेसिक्स ऑफ 4 सेट वेन डायग्राम, क्योंकि मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस सेशन में और वैसे भी तुमने कहीं ना कहीं पे देखा होगा, सॉल्व किया होगा। ठीक है, अगर कोई भी सेट सॉल्व नहीं किया तो देख लेना एक बार, वो सेशन चेकआउट कर लेना पीछे वाला। ठीक है, सो फर्स्ट सेट बिलोंग्स टू मार्केटिंग, एंड द फर्स्ट सेट इज बेसिकली this set, this belongs to marketing, and then second set belongs to finance, third one belongs to operations, fourth one belongs to HR. Okay, और हमें क्या वैल्यूज पता है ऑलरेडी कि ये those who belong to only one set that is equal to 40, those who belong to two sets, 2 electives, those who opted for exactly 2 electives that is 80, exactly 3 electives that is also 40, and exactly 4 electives that is also equal to 40. So exactly 4 will be exactly in the middle, this number is 40, and for exactly 3 electives, question is saying each pair of 3 electives was opted by equal number of students. एंड 3 इलेक्टिव्स के कितने केसेस बनेंगे हमारे पास? 4 केसेस बनेंगे, क्योंकि 4 में से 3 सेलेक्ट करना है, 4 से 3, सो 4 केसेस बनेंगे। ठीक है, 1 केस विल बी हियर मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, 1 केस विल बी हियर मार्केटिंग, फाइनेंस एंड सॉरी ऑपरेशंस, एचआर एंड मार्केटिंग, 1 केस विल बी ऑपरेशंस, एचआर एंड फाइनेंस, एंड लास्ट वन विल बी हियर मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर. सो ऑल दीज 4 विल बी 10 ईच, बिकॉज सारे इक्वल होने, ऑल दीज 4 विल बी 10 ईच. ठीक है, देन क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसके अलावा और क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चोज वन इलेक्टिव ओनली वाज आल्सो इक्वल फॉर ऑल द इलेक्टिव्स. देयर आर 4 इलेक्टिव्स, यानी कि 10 ईच फॉर एवरी इलेक्टिव. तो 10 फॉर मार्केटिंग ओनली, 10 फॉर फाइनेंस ओनली, 10 फॉर ऑपरेशंस ओनली, एंड 10 फॉर एचआर ओनली. ये भी सेट हमारा कंप्लीट हो गया. अब इसके बाद में इंफॉर्मेशन हमारा दिया हुआ है फॉर 2 sets, those who opted for exactly 2. So let EXY represent the number of students who chose the electives X and Y only. And then we've been given the relationship for them. So E, M, M, F यानी कि marketing and finance. So those who opted for marketing and finance only, which is this set. Sorry, this is not the set. गड़बड़ कर रहे हैं. Marketing and finance only.
ठीक है, सो दैट बिलोंग्स टू दिस पोर्शन. Marketing and finance only is equal to operations and HR only. So this is this portion. So this portion here has the same value as for this portion. बट अभी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बोथ मार्केटिंग एंड फाइनेंस, दैट टोटल दिस टोटल इज इक्वल टू 90. ये टोटल हमारा इक्वल टू 90 आ रहा है. ठीक है, ये टोटल हमारा इक्वल टू 90 आ रहा है, और ये किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली दिस रीजन है. दिस इज बोथ मार्केटिंग एंड फाइनेंस. हमेशा देखो, कभी भी सेट का वेन डायग्राम का क्वेश्चन करोगे तो हमेशा ऑब्जर्व करना है कहाँ पे ओनली लिखा है, कहाँ पे ओनली नहीं लिखा है. बिकॉज अगर क्वेश्चन कहता है बोथ मार्केटिंग एंड फाइनेंस ओनली, तब फिर हमारा पहला जो पोर्शन था बस उसकी ही बात होती है हमारी, जो अपर पोर्शन है. ठीक है, फिर उस केस में हम उसी की बात करते हैं, इस पोर्शन की बात करते हैं. इफ क्वेश्चन कहता है बोथ मार्केटिंग एंड फाइनेंस ओनली, बट क्वेश्चन कह रहा है बोथ मार्केटिंग एंड फाइनेंस नॉट ओनली, यानी कि यहाँ पे और भी कोर्सेज हो सकते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारा पूरा जो सेट है हमारा जो रिप्रेजेंट किया उसके बारे में बात करेगा. ठीक है, सो दैट टोटल इज इक्वल टू 90. पूरा टोटल हमारा इक्वल टू 90 आ रहा है. अब 90 में से 10 40 10 ये तो ऑलरेडी फिल किया हुआ, 60 ऑलरेडी फिल किया हुआ, यानी कि रिमेनिंग विल बी 30. So for marketing and finance only, number will be equal to 30, and since marketing and finance only is also equal to operations and HR only, so this will also be equal to 30. ये दोनों 30 आ जाएंगे. ठीक है, अब आगे की बात करते हैं. सो मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस ओनली इज इक्वल टू फाइनेंस एंड HR ओनली. मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस ओनली इज दिस पोर्शन हियर, and this is also equal to finance and HR only. देखिए this is equal to this. ठीक है, चलो क्रॉस कर देते हैं यहाँ पे so that confusion नहीं हो. So these two are equal, and then marketing and HR, which is this portion, this is same as finance and operations. Okay, so let us say कि हमारा A values है, A is the unknown here. So if this is A, this will also be equal to A, and if this is B, this will also be equal to A. Clear है? ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि those who belong to two sets, total sum of them is equal to 80. तो टोटल सम को इक्वेट कर दो, 80 के बराबर कर दो. दिस इज 30, बाई दिस पोर्शन बिलोंग्स टू टू सेट्स, दिस 30 ऑल्सो बिलोंग्स टू टू सेट्स, तो टू वाला टोटल सम हमारा क्या आएगा? 30 प्लस 30 प्लस मार्केटिंग एंड फाइनेंस ओनली विच इज इक्वल टू, वो तो 30 हो गया. मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस ओनली इज इक्वल टू ए, मार्केटिंग एंड HR ओनली इज इक्वल टू बी, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस ओनली दैट इज इक्वल टू बी, एंड फाइनेंस एंड HR ओनली इज इक्वल टू ए. दिस टोटल सम इज इक्वल टू 80, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B. दिस इज इक्वल टू 20. A प्लस B कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10. तो यहाँ से मल्टीपल केसेस बन सकते हैं हमारे. A could be equal to 0, B could be equal to 10, A could be equal to 1, B is equal to 9, and so on and so forth. अब क्वेश्चन पे चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, how many students opted for all the electives? Opted for all the 4 electives. So that total is equal to 40. Second question, how many students opted for marketing as one of the only 2 electives they opted for? So this is talking about the students, those who opted for 2 electives, out of which marketing was also one of them. So 2 electives and marketing was also one of them. यानी कि either they opted for marketing and operations, or marketing and finance, or marketing and HR. So these 3 cases. मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस का नंबर क्या आ रहा है हमारा? दैट इज इक्वल टू ए, और ओनली टू की बात कर रहा है, ध्यान देना, ओनली टू. ठीक है, तो मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस ओनली की बात कर रहा है, दैट इज इक्वल टू ए, एंड मार्केटिंग एंड फाइनेंस ओनली दैट इज इक्वल टू 30, एंड मार्केटिंग एंड HR ओनली दैट इज इक्वल टू बी. So this total sum will be equal to 30 plus A plus B. So since A plus B is equal to 10, so this total sum will be equal to 40 irrespective of what values of A and B we are taking. So A और B की वैल्यूज कुछ भी हो, टोटल सम हमारा 40 आ जाएगा. ऑप्शन C will be the answer. Okay. Third question, what is the maximum possible number of students who opted for both marketing and operations? Both marketing and operations. Again, only mention नहीं है, यानी कि this is talking about marketing and operations वाला portion, जो हमारा कहाँ पे आ रहा है? Second. This portion basically. Maximum value of this portion. And which is A plus 10 plus 10 plus 40, यानी कि 60 plus A. This is 60 plus A. Okay. और मैक्सिमाइज करना है इस वैल्यू को, तो A at max can be equal to 10.
A has to be less than equal to 10, but maximum 10 हो सकता है. तो maximum value of this will be equal to 60 plus 10, which is equal to 70, क्योंकि और कोई additional constraint तो था नहीं, तो A can be equal to 10 also. So maximum value will be equal to 70 for this question. Fourth question, if the number of students taking finance and HR only are more than students taking finance and operations only, then what is the maximum possible value of number of students taking marketing and HR only? यहाँ पे only सारे के सारे केस हैं. Finance and HR only, and that is equal to finance and HR only is equal to A. So A, and this is more than, greater than those who have taken finance and operations only, and finance and operations only is equal to B, यानी कि A is greater than B. That is given. So question is asking about what is the maximum possible number of students taking marketing and HR only, and marketing and HR only is also equal to B. ठीक है, that is also equal to B. So question पूछ रहा है B का maximum value क्या होगा, but A is greater than B, so A plus B is equal to 10, and A has to be greater than equal to B. A और B इक्वल होते दोनों 5 हो जाते, बट A has to be greater than B और B को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो A को छोटा से छोटा वैल्यू हमें लेना पड़ेगा. स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ A that is greater than B will be equal to 6. So B in that case will be equal to 4. So this is the maximum value of B. So B max will be equal to 4 in this particular scenario. और क्वेश्चन ओनली पूछ रहा है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा इस केस में, will definitely be equal to 4. Okay. Now last question of this set as well as the session, that is if 62.5% of students who opted for both marketing and operations are boys, so while 50% of students who opted for marketing are girls, so what could be minimum possible number of girls who opted for marketing and finance only? Okay, so only focus करना हमें कहाँ पे, marketing and marketing वाले पूरे के पूरे और डब्बे पे फोकस करना है. 62.5% of students who opted for both marketing and operations. Only नहीं मेंशन्ड है, तो मार्केटिंग ऑपरेशंस का सेगमेंट में हमारा कितना नंबर आ रहा है टोटल मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस में, वही तो हमने अभी निकाला ही था. तो दिस नंबर वाज बेसिकली 60 प्लस ए. तो क्वेश्चन है सेइंग 60 प्लस ए का 5/8, 62.5% which is 5/8. 12.5% is 1/8, तो 5/8 of the students who are pertaining to marketing and operation which is 60 plus a. So 5/8 of 60 plus a, this is equal to boys. और जहां पे भी बात हो पर्सन्स की, तो डेफिनेटली पर्सन्स हमेशा इंटीजर में होंगे, तो बॉयज तो इंटीजर में ही होंगे. और 60 प्लस ए इंटू 5/8 इंटीजर कब आएगा, व्हेन 60 प्लस ए, सिंस 5 तो 5 एंड 8 का को प्राइम, सो 8 का मल्टीपल होना चाहिए 60 प्लस ए, तभी तो इंटीजर आएगा. ठीक है, तभी तो इंटीजर आना पॉसिबल होगा. तो 60 प्लस ए मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 4, सॉरी मल्टीपल ऑफ 8, मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 8. एंड एट मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है, दिस वैल्यू बिटवीन 60 एंड 70. So there is only one multiple of 8 between these two values which is equal to 64. So clearly हमें बन जाता है कि यहाँ पे वैल्यू मिल जा रहा है मार्केटिंग ऑपरेशंस का नंबर जो होगा that must be 64 because तभी हमारा 62.5% डिफाइंड होगा. If that is the case, तो A is equal to 4 आ गया. So students who opted for both marketing and operations that is equal to 64. Then questions कह रहा है 50% of the students who opted for marketing are girls. What could be minimum possible number of girls who opted for marketing and finance only? Okay. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्केटिंग में कितने आ रहे हैं हमारे. अच्छा हमने सम तो निकाली ही थे सारे के सारे सेट्स का. सम भी यहाँ पे इजीली निकल पा रहा है बिकॉज ए प्लस बी हमारा इक्वल टू 10 आ रहा है. ठीक है, तो अगर सम निकालते हैं दोज हु ऑप्टेड फॉर मार्केटिंग, तो सम क्या आ जाएगा हमारा 90. तो आ गया मार्केटिंग फाइनेंस वाला. सो 90 प्लस 10% दैट इज 110 प्लस ए प्लस बी दैट इज 120. तो 120 ऑप्टेड फॉर मार्केटिंग. सिमिलरली 90 प्लस 20 110 प्लस ए प्लस बी यानी कि 120 ऑप्टेड फॉर फाइनेंस. एंड बाय द सेम लॉजिक 120 ऑप्टेड फॉर ऑपरेशंस एंड 120 ऑप्टेड फॉर एचआर ऑल्सो. तो ये नंबर हमारे सारे सारे 120 आ रहे हैं. क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है हमसे क्योंकि मार्केटिंग वाले टोटल बंदे कितने हैं 120 के. इन मार्केटिंग टोटल आर 120. And 50% of the students who opted for marketing are girls. So out of these 120, 60 are boys and 60 are girls. Okay, as far as marketing and operations is concerned, because this is also a subset of marketing, so this portion of marketing which is marketing and operations, यानी कि जिन्होंने marketing and operations दोनों के लिए opt किया है, so that number is total 64. And out of these 64, boys are 40. 40 are boys. 5/8, 62.5%. So 5/8 of 64, that is equal to 40. 40 are boys, 24 are girls. Then question कह रहा है minimum possible number of girls who opted for marketing and finance only. मिनिमाइज करना है हमें नंबर किसका, गर्ल्स का, who opted for marketing and finance only. And marketing and finance only का नंबर क्या आ रहा है, दिस नंबर इज 30. 30 आ रहा है. ठीक है, तो टोटल 30 में से कितना हमारा गर्ल्स का नंबर मिनिमम कितना पॉसिबल हो सकता है आउट ऑफ दिस 30 मार्केटिंग एंड फाइनेंस ओनली.
अब देखो जो सेट हमारा मार्केटिंग ऑपरेशंस का था बिल्कुल सेपरेट सेट है, मार्केटिंग फाइनेंस ओनली वाला सेट सेपरेट है, ठीक है। मार्केटिंग फाइनेंस ओनली और मार्केटिंग ऑपरेशंस में कुछ भी कॉमन नहीं है हमारा, ठीक है, ध्यान देना। मार्केटिंग फाइनेंस ऑपरेशंस तो हो सकता है बट वो हमारा अलग आ रहा है, मार्केटिंग फाइनेंस ओनली और मार्केटिंग ऑपरेशंस में कुछ भी कॉमन हमारा नहीं है, ठीक है। सो इस केस में हमारा दिस सेट टोटल नंबर 30, तो यहाँ पे और इस केस में इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 40 बॉयज ये जो आ रहे हैं यहाँ पे ये बिल्कुल सेपरेट है। अब इस 30 में मैक्सिमम कितने बॉयज रख सकते हैं, क्योंकि हमें गर्ल्स को मिनिमाइज करना है, तो बॉयज शुड बी मैक्सिमाइज्ड। भाई बॉयज अगर मैक्सिमम होंगे, ओनली इन दैट सिनेरियो गर्ल्स कैन बी मिनिमम। और टोटल मार्केटिंग में हमारे पास 60 बॉयज है, आउट ऑफ दो 60 बॉयज 40 बॉयज को ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है, 60 में से 40 बॉयज ऑलरेडी देयर इन मार्केटिंग ऑपरेशंस, तो कितने बॉयज और बच गए मार्केटिंग ऑपरेशंस के अलावा, ओनली 20 बॉयज आर रिमेनिंग। तो सारे के सारे 20 बॉयज को हम पुट कर सकते हैं मार्केटिंग फाइनेंस ओनली में, मैक्सिमम मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, 20 या उससे कम होंगे, ठीक है, तो लेस देन इक्वल 20 नंबर आएगा हमारा। अब क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है बॉयज को, तो हमने कह दिया 20 बॉयज सारे के सारे जो भी बच गए हमारे बॉयज, ये सारे के सारे बॉयज आर इन मार्केटिंग फाइनेंस ओनली, तो इन दैट केस रिमेनिंग 10 हैव टू बी गर्ल्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी इक्वल टू 10, क्योंकि गर्ल्स का जो नंबर होगा दैट विल बी ग्रेटर इक्वल टू 10, बिकॉज बॉयज आर लेस देन इक्वल टू 20, टोटल समान है 30, तो 10 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ गर्ल्स who opted for marketing and finance only will be equal to 10 for sure, 10 या फिर उससे ज्यादा वैल्यू रहेगा, मिनिमम हमारा आंसर विल बी 10 फॉर दिस क्वेश्चन। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्लियर है बात, ठीक है। तो दिस वाज आवर सेट फॉर टुडे, आई बिलीव कि सेट में सारी सारी बातें सामने आएंगी, फिर भी कहीं डाउट रहता है कमेंट में जरूर मेंशन करना, सेशन कैसा लगा और तुमने कितने क्वेश्चंस करेक्टली हिट किए ये भी जरूर बताना, और टाइम कितना स्पेंड किया इन दिस पर्टिकुलर सेट, ठीक है। क्वेश्चंस अच्छे थे और बहुत डिफिकल्ट सेट नहीं था, सिंपल सेट था, अगर तुमने एक बार लैंग्वेज समझ लिया होगा, 4 सेट वेन डायग्राम किया होगा पहले से, तो डेफिनेटली इस सेट को इजीली टैकल कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत अटके होगे तो हो सकता है गलती ये हो, तो कमेंट में मेंशन करना कि तुम्हें ये सेशन कैसा लगा और क्या साइक्स का क्वेश्चन इजीली तुम हैंडल कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है। इतना ही रखते हैं सेशन में, बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग। नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट सेशन में कुछ और बढ़िया सेट करेंगे, दैट्स ऑल, टेक केयर।